नमस्कार। डीएवीपी की ओर से भारत सरकार के 2016 के कैलेंडर रिलीज के मौके पर हम आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 2016 की ढेरों शुभकामनाओं के साथ डीएवीपी द्वारा डिजाइन किया हुआ और प्रकाशित दीवार कैलेंडर एक बार फिर से आपके सामने आने के लिए तैयार है। इस बार की कैलेंडर की थीम यानी विषय है विकास की नई उड़ान। देश के सर्वांगीण विकास की झलक दिखा रहा है इस बार का नया नवेला कैलेंडर। हम मंच पर मौजूद सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जेटली जी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, सूचना और प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा जी, विशेष सचिव श्री JS माथुर जी का यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जेटली जी से निवेदन करेंगे कि वर्ष 2016 का भारत सरकार के कैलेंडर का लोकार्पण करें। Respected Honorable Minister for Information and Broadcasting, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Secretary Sir, and Special Secretary Sir. Sir, we are glad that you could spare. Sir, we are glad that you could spare few minutes amidst your hectic schedule for accepting to release the calendar, DAVP calendar, Government of India wall calendar. We are thankful to you, sir. This calendar, as you will see, sir, it is both tradition and modern. Tradition is a routine wall calendar with dates and months, but it is modern in the sense that it shows the mission, the vision of the government, and it sums up the Tarak mantra of our government. हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी, गरीबों को समर्पित भारत सरकार. It is all enshrined in the total umbrella theme, सबका साथ, सबका विकास. And this calendar, for your kind information, sir, it's going to travel beyond the few square kilometers of Raisina Hill. It is going to reach all the panchayat. We have about nearly 6.5 lakhs calendars meant to be distributed to all panchayats in the country with the active cooperation and support of Department of Posts. And for your kind information, sir, this calendar design is inborn with a relentless support and suggestion and active involvement of our Honorable Minister of State for Information Broadcasting, Colonel Rathore Saab, who was kind enough to sit through various presentations and give us effective guidance and suggestions. And we, with the help and support of the Ministry of Information Broadcasting, we in DAVP will strive to achieve excellence in whatever field we are planning to do in the days, months and years to come. Thank you, sir. धन्यवाद, धन्यवाद गणेशन जी। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली जी से कि वो दो शब्द कहें और हमारा मार्गदर्शन करें। My colleague Colonel Rajwardhan Singh Rathore, the Secretary Ministry of Information and Broadcasting, the Special Secretary, the DG DAVP, ladies and gentlemen. Let me at the very outset compliment the DAVP of still bringing out the conventional calendar that it used to. Technology has changed the way we live, and therefore not only the year's calendar but a calendar for almost years to come people carry in their palms or their pockets. But some conventions still retain a place, and one of them is the conventional calendar. And this conventional calendar not merely is relevant for the purposes of dates or the months,
but hung on various walls, it also conveys the message. And this year the message that they have chosen from smart cities to Beti Bachao, Beti Padhao, to the Mudra Yojana, to power for all, jobs for all, the farmers' welfare. For each of the 12 months, there are 12 developmental themes. But then in the calendar of development, there is never a last day, because that's an ongoing process. And therefore, the conventional calendar only becomes relevant for the purposes of fixing and identifying the days, the months, or the years. But this is a process which goes on. And I do hope that this calendar, which is being circulated from the highest office in the country to the panchayats, to all our elected representatives, to all government offices, that all those, particularly our elected representatives, also realize the power of the message of development contained in this. And the message of development is itself represented in various schemes. So I am sure this repeated emphasis month after month will certainly create impressions on the human mind of what our national priorities and national agenda is. I once again thank and compliment the DAVP for bringing out this calendar, which I am sure will continue to be a conventional addition to the way we've all lived in making it an essential part of literally our office and household effects. Thank you very much, and my best wishes to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण जेटली जी। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों की प्रस्तुति के साथ। अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं नितप्रियं भारत भारतं नितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् नीत निरन्तरता नवता मानवता क्षमता ममता नीत निरन्तरता नवता मानवता क्षमता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता संकल्प अभिजित अभिमतम् संकल्प अभिजित अभिमतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् नितप्रियं भारत भारतं नितप्रियं
भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् कुसुमित नई कामनाए सुरभित नई साधनाए कुसुमित नई कामनाए सुरभित नई साधनाए मैत्रीमती क्रीड़ांगन में प्रबुदित बंधु भावनाए शाश्वत सुविकसित इति शुभम् शाश्वत सुविकसित इति शुभम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नित प्रियम् भारत भारतं नित प्रियम् भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नित प्रियम् भारत भारतं नित प्रियम् भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2016 का कैलेंडर आप सबके समक्ष हाजिर हो गया है और ये सिर्फ तारीख पे तारीख नहीं है बल्कि इस कैलेंडर की एक थीम है विकास की नई उड़ान। सबके विकास के साथ देश के सर्वांगीण विकास की एक तस्वीर पेश कर रहा है 2016 का ये DAVP का कैलेंडर। आइए एक नज़र डाल लेते हैं सन 2016 के इस नए नवेले कैलेंडर पर। जनवरी माह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई स्मार्ट सिटी योजना को दिखा रहा है जनवरी माह। फरवरी बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर आधारित है फरवरी महीना। मार्च छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने वाली मुद्रा योजना को दिखा रहा है मार्च माह। अप्रैल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास के बारे में बता रहा है अप्रैल माह। मई सरकार द्वारा हेल्थ केयर सुविधाओं पर दिया जा रहा है विशेष बल और इसे ही दिखा रहा है मई महीना। जून गरीबों के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही जनधन योजना, यही है जून माह की थीम। जुलाई माह दिखा रहा है डिजिटल इंडिया के स्वप्न को। मोबाइल सर्विसेज को ई बैंकिंग के साथ जोड़ा गया है। अगस्त एक निश्चित समय में सभी गांवों में बिजली, इसी प्रण को प्रदर्शित कर रहा है अगस्त माह। सितंबर सभी के लिए रोजगार के अवसर, यही दिखा रहा है सितंबर माह। अक्टूबर किसान हमारे समाज की रीढ़ हैं, किसानों के हितों के प्रति सरकार सदैव प्रयत्नशील है। नवंबर बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर, इसी को दिखा रहा है नवंबर माह। सागरमाला परियोजना इसी का उदाहरण है। दिसंबर अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के विकास की प्राथमिकता को दिखा रहा है दिसंबर माह। तो ये था कैलेंडर 2016 का। और अब 2016 के भारत सरकार के दीवार कैलेंडर के साथ ही हम लॉन्च कर रहे हैं आपके हमेशा साथ रहने वाला डिजिटल कैलेंडर ऐप। हम निवेदन करेंगे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी से कि वो डिजिटल कैलेंडर ऐप का लोकार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक नज़र डाल लेते हैं डिजिटल कैलेंडर ऐप पर। ये ऐप आप एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप में दिन और छुट्टियों के अलावा सरकार के किसी भी दिन के इवेंट्स देखे जा सकते हैं। इसमें किसी भी दिन के पत्र सूचना विभाग की प्रेस विज्ञप्ति को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के लेटेस्ट यानी नवीनतम ट्वीट्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल के लिंक पर भी आप चाहें तो जा सकते हैं। यही नहीं, इसमें आकाशवाणी समाचार और डीडी न्यूज़ के प्रमुख समाचार भी आपको मिलेंगे। आप चाहें तो उनके लिंक्स पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा सभी सरकारी वेबसाइट्स के लिंक भी इस पर उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और अब हम अनुरोध करेंगे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी से कि वो हमें संबोधित करें। सूचना प्रसारण सेक्रेटरी श्री सुनील अरोड़ा साहब, स्पेशल सेक्रेटरी श्री माथुर साहब, डीजी डीएवीपी, यहाँ पर उपस्थित आईएनबी के सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथी दोस्तों, सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, जिन कामों का लाभ हर नागरिक उठा सकता है, वो अक्सर नागरिकों तक नहीं पहुंचती। और अगर हमें लगता है कि अखबार में चंद आर्टिकल से या रेडियो या टेलीविज़न पे चर्चाओं से गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर जो नागरिक बसते हैं वहां तक पूरी डिटेल में ये योजनाएं पहुंच जाती हैं, तो ये गलतफहमी है। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूँगा कि लगातार लोगों से मुलाकात करने के बाद ये महसूस होता है कि इन योजनाओं का सक्सेस शायद इसी कारण से नहीं होता कि ये योजनाएं उनको डिटेल में पता ही नहीं होती। और किसी भी योजना का अगर सक्सेस रेट बढ़ाना हो तो योजना चाहे बुरी हो या अच्छी, वो योजना अगर समझ में आ जाए तो उससे लाभ उठना शुरू हो जाता है। और फिर आगे जब एक बार नागरिक उसका लाभ उठाना शुरू करते हैं तो अपने आप जो फीडबैक आता है उससे वो योजनाएं बेहतर भी बनाई जा सकती हैं। देयर इज अ कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट ऑफ feedback coming from the people, and that will only come after the people start using the various schemes. आजकल एक ऐसी प्रथा भी चली है कि बिना सरकार के आउटसोर्स करे हुए कुछ लोग सरकार का मुद्दा लोगों तक पहुंचाते हैं। सरकार का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, वो सरकार खुद बताना चाहती है, लेकिन कुछ लोग ये दायित्व अपना ले लेते हैं कि हम बताएंगे सरकार का दायित्व, सरकार का लक्ष्य क्या है। मेरे ख्याल से इस कैलेंडर से जो पूरे 12 महीने के लिए अंदर जो हमने डेवलपमेंटल योजनाएं जो दर्शाई हैं, जिनके बारे में लिखा है, ये इस सरकार का लक्ष्य है। 11 लाख हमारी इसका जो सर्कुलेशन है, जहाँ पर ये कैलेंडर पहुँचता है, वो 11 लाख एड्रेसेस हैं, जिसमें पंचायत शामिल हैं, पार्षद शामिल हैं, हर सरकारी दफ्तर शामिल है। इन सभी दफ्तरों के अंदर जब ये कैलेंडर लगेगा, और कैलेंडर का मकसद होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, तो कहीं ना कहीं हर रोज एक बार कैलेंडर पे नजर जाती ही है। तो एक मकसद ये भी है कि इस कैलेंडर को देखकर सरकार का हर अधिकारी हर रोज ये याद कर ले कि सरकार का लक्ष्य क्या है, जो डेवलपमेंटल जो हमारी पॉलिसीज हैं क्या हैं, हमारी जो फोकस एरियाज हैं वो कौन से हैं। और इस कैलेंडर के अंदर, क्योंकि आजकल के युवा ऑनलाइन काफी रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, तो नीचे की तरफ हमने वो सभी वेबसाइट्स लिखी हुई हैं, पोर्टल्स लिखे हुए हैं, फेसबुक के एड्रेसेस लिखे हुए हैं, जहां वो युवा उसको देखकर डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्ट भी कर सकते हैं सरकार के साथ। और वे यदि अपना फीडबैक देना चाहें
तो कैलेंडर के दाहिनी तरफ कोने में हमने mygov.in का भी पूरा पता दिया हुआ है, जहां पर अक्सर नागरिक अपना जो अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं वो उस वेबसाइट पे शेयर करते हैं। एक ई वर्जन भी इस कैलेंडर का लॉन्च करा इसी कारण से, क्योंकि ज़्यादातर लोग दफ्तर से बाहर रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो मोबाइल पर वो अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और जो डिटेल चाहिए होता है वो एक ही एप्लीकेशन से उनको मिल सकता है। डीएवीपी का काम इन सरकार की सभी पॉलिसीज को मीडिया के साथ मिलकर अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाना है। एंड इट इज अ ever going process of modernizing the DAVP, coming up with new techniques and ideas of how the government policies can reach people. And therefore DAVP, and I'm proud to say that DAVP is now working on getting more online. Therefore there's minimum interaction with people and therefore maximum transparency. And also trying to send out advertisements digitally so that not only do we save on the expenses, but use that bit of money for reaching as many more people as we can. There is also a focus in DAVP now to send out advertisements to target audiences. तो आप अक्सर पाएंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो योजनाएं ताल्लुक़ रखती हैं वो ज़्यादातर डीएवीपी रीजनल न्यूज़पेपर्स में देने की कोशिश करता है। हालांकि कई बार आप ये भी देखेंगे और मैं ऑनलाइन देखता हूं कि कई बार सवाल उठते हैं कि ग्रामीण योजना अंग्रेजी अखबार में क्या कर रही है। देयर इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी टू रीच आउट टू इंटेलेक्चुअल्स, टू पीपल who write about government policies, for them to know that there is such policies for the rural areas and rural population as well. So my congratulations to DAVP for coming up with a very contemporary calendar. The presentation on the calendar is very modern, and their ability to cover as much information with the least clutter on a given amount of paper space. Thank you so much and wish you all the best. बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी। और अब अंत में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आमंत्रित करेंगे डीएवीपी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री सत्येंद्र प्रकाश जी को कि वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, respected Secretary, Information and Broadcasting, Special Secretary, Director General, DAVP, ladies and gentlemen. First and foremost, I express sincere thanks and gratitude of entire DAVP to the Honorable Minister of Information, Broadcasting, Finance and Corporate Affairs, who spared time out of his busy schedule to be present here and release the DAVP's World Calendar 2016. Under his esteemed guidance and leadership, the Government of India calendar has now become a powerful means of communication, while it serves the purpose of conventional calendar. Each page of this calendar reflects the vision of the government and the goal it aspires to achieve for the people of India. I may mention this calendar does adorn not only the walls of offices in Delhi and capitals of the states, but also finds a place in rural areas. Our officers who went out as awareness observers are a testimony to the fact that this calendar hangs on the walls of panchayats and blocks and even in remote areas. I take this opportunity to thank Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, who has guided us through this endeavor of seamless integration of technology with tradition. Today, alongside the traditional calendar, we have seen the launch of digital calendar,
which is available to us through mobile apps. And with this calendar becomes a multi-purpose tool where different platforms of technology converge to keep us updated on happenings around. My sincere thanks to Secretary INB as well for gracing this occasion and for always being a source of inspiration. Without your support, sir, it would not have been possible to bring out this calendar on time. My thanks to Special Secretary INB, Joint Secretary P&A, and their entire team for always standing behind DAVP in all its endeavor. I fail in my duty if I do not thank DG DAVP and the team under him, which has worked untiringly to ensure the completion of this project on time. Last but not the least, I thank all our sister media organizations, particularly Photo Division, Press Information Bureau, Song and Drama Division, All India Radio, and Doordarshan for their support. I also thank the representatives of print and electronic media who have come for the coverage of this event. Thank one and all. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र प्रकाश जी, और नए साल की ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी जलपान के लिए सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।